Good morning, everyone. And here in my today's class, we are going to complete the lesson 7. Some parts were left. ठीक है मतलब कुछ पार्ट जो है वो बच गया था. So that we are completing in our today's video. So here is in the page number 80. ठीक है, here in the page number 80 we are completing these exercises. So write in expanded long form. ठीक है, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड का मीन ही होता है लॉन्ग. ठीक है, किसी चीज़ को एक्सपेंड करना मीन्स उसको लॉन्ग फॉर्म में लेकर आना. सो दैट इज एक्सपेंडेड. सो राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, किसी चीज़ को एक्सपेंड फॉर्म में लिखना. EXPANDED, एक्सपेंडेड. ठीक है, सो हियर द नंबर्स आर गिवन टू अस लाइक 36. ठीक है, नाउ यू नीड टू नो that how you can write it in a correct expand form. ठीक है, so first in the very simple form we write it like in their we take their tens and we take their ones out, and that is how we write it. Like the 36 number, you can see this 36, how this 36 is been formed. ठीक है, ये 36 कैसे बना हुआ है. सो इट इज मेड अप ऑफ 30 + 6. ठीक है, दैट इज हाउ वी राइट इट. सो हियर स्टूडेंट, सम ऑफ यू विल से दैट 12 + 12 + 12, if we will add all these three numbers then also the answer will come 36, but this won't be our expanded form of the number when we write the expanded form of something. Okay, when we write the expanded form of something we take their face values. हम उसके face values को ही अलग करते हैं. Like we have seen this 36, so you can't write just 3 and 6 as their face values. Okay, this 3 is made up to make it 36. We need to write here proper 30 and add it with 6, then only it become the proper 36. and face value का means क्या होता है, what you are saying that is called face value. ठीक है, there is one thing called place value and one is face value. ठीक है, सो फेस वैल्यू विच यू आर seeing it properly, like here is written 36, so you can say the face value of it. Ones is 6 and tens is 3. Okay, that is how you differentiate it. But when we are asking for place value, then we need to write it properly. 0 30 and 6 as its ones. 6 is the ones, so I wrote it like this, and 3 is the tens, so I wrote it like this. So these are the difference that place value and in face value. ठीक है, place value and face value are completely different. Now when we are expanding numbers, जब हम किसी नंबर को expand कर रहे होते हैं, that time we need to write it according to their place values. ठीक है, हमें उसके place value के according लिखना होता है. जैसे I have given to you here the number 36, मैंने आपको जैसे 36 नंबर दिया हुआ है. देन हाउ द 36 नंबर इज बिन फॉर्म्ड, मतलब वो नंबर 36 कैसे बना हुआ है. सो अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यूज वी विल राइट इट 3030 + 6. If I have given to you number 136, ठीक है, so the 6 is in the place of ones, so we will write it here on the place of ones. Then 3 is in the place of tens, so we will write it as tens, and the 1 is in the place of 100, so we will write it accordingly 100, because 100 is made up of 3 digits. 100 is made up of 3 digits. tens जो होते हैं that are made up of 2 digits, and ones is made up of only 1 digit. ठीक है, like here I have given to you 543. ठीक है, 543 I have given to you this number. ठीक है, in this number you can see this 3 is in the place of ones. 3 is in the place of ones, and when the number is in the place of ones, then the ones is made up of only 1 digit. तो हम इसीलिए इसको only 3 as a 1 digit लिख रहे हैं. ठीक है, then there is a 4.
4 इज इन द प्लेस ऑफ टेंस. 4 किस प्लेस पर है? इट इज इन द प्लेस ऑफ टेंस. अब टेंस का जो प्लेस है वहां पर हमेशा 2 डिजिट्स होते हैं. ठीक है, टेंस का प्लेस पे कितना डिजिट होता है? सो देयर आर 2 डिजिट्स. सो वी विल राइट इट अकॉर्डिंगली. सो वी आर राइटिंग इट 40. ठीक है. नाउ यू कैन सी दिस 5. दिस 5 इज इन द प्लेस ऑफ 100. दिस 5 इज इन द प्लेस ऑफ 100. ये किस प्लेस पर है? 100 के प्लेस पर है. और जब कोई नंबर 100 के प्लेस पर है देन इन द 100 देयर आर 3 डिजिट्स. 100 में 3 डिजिट्स होता है. ठीक है. सो वी विल राइट इट अकॉर्डिंगली एज 100. सो देयर इज 500, 40 and 3. When we will add them all then it will become 543. So if I am asking you the question that write this number in the expanded form, मतलब मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि इस 543 को आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखो. क्या है मेरा क्वेश्चन? 543 को एक्सपेंड फॉर्म में लिखो. देन व्हाट यू विल डू? यू विल राइट इट अकॉर्डिंग टू द प्लेस वैल्यूज. दैट दिस 5 इज इन द प्लेस ऑफ 100. सो यू विल राइट इट 100, 500. दिस 4 इज इन द प्लेस ऑफ टेंस. यू विल राइट इट एज टेंस 40 because in tens there are 2 digits. Then 3 is in the place of ones. So you will write it as ones, only single 1 digit number. Okay, that is how you will write it. I hope you understood. Now let's see some more examples so we will understand it better. Now here I have given to you number 229. ठीक है, this is my number 229. So and my question is to write it in the expanded form. ठीक है, this is my question to write it in the expanded form. Now what you will do? So according to their places you will write it. Like there is this 9. 9 is in the place of ones and in the ones there is only 1 digit. ठीक है, ones में कितना digit होगा? So in the ones there is 1 digit. We will write it like this. Then there is 2. 2 is in the place of tens. 2 is in the place of tens and in the tens 2 कहाँ पर है? टेंस के प्लेस पर है और टेंस में होता है 2 डिजिट्स. ओके, देयर आर 2 डिजिट्स इन टेंस. सो व्हेन द नंबर इज इन द प्लेस ऑफ टेंस वी विल राइट इट अकॉर्डिंग टू द टेंस. सो 20 टेंस बिकॉज टेंस में कितना डिजिट होता है? 2 डिजिट्स. सो दैट इज वाई आई हैव रिटन इट लाइक दिस. Then we commit the last number which is also 2 but it is in the place of 100 and in the 100 how many digits are there? 3 digits. 100 में कितना digits है? 3 digits. So that is why I have written it like this 100. So how अब आंसर आपको इस तरह से नहीं लिखना है. How you will write the answer? So you will write it 200 plus 20 plus 9. ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ 229 एक्सपेंडेड फॉर्म. ठीक है, दैट इज हाउ यू विल राइट. नाउ आई हैव गिवन टू यू 348. ओके, हाउ यू विल राइट इट आउट नाउ? सो दिस इज द क्वेश्चन I have formed here. Now how you will write? You will see the 3 is in the place of 100, 4 is in the place of tens and 8 is in the place of ones. So 3 is in the place of 100, we will write it as 100, 300. 4 is in the place of tens, we will write it as tens, 40 tens because in tens there are 2 numbers, in 100 there are 3 digits, in ones there is only 1 digit. So we will write it like this. I hope you understood. One more we are doing 627. ठीक है, this is the number and how you will write this? So this is how I formed the question. मैंने question को इस तरह से लिखा. So we will write it because there is 6 is in the place of 100. So we will write it as 100 because in 100 there are 3 digits. Digits क्या होते हैं? ये numbers ही digits होते हैं. ठीक है, so we will write it as 100. So we have written 600. Then 2 is in the place of tens. So we will write it 20 tens because in tens there are 2 digits. Then the 7 is left. So we will write it as usual because in ones there is only 1 digit.
I hope you understood it. Okay, so now let's solve the exercises of our book, and this you have to solve in your book only. ठीक है, don't write them in the notebook, just do it. So here you can see 59 how you will write. So 5050 because it's in the place of tens. इस 5 को हमने 50 क्यों लिखा है? बिकॉज इट्स इन द प्लेस ऑफ टेंस, और टेंस में हमेशा क्या होते हैं? 2 डिजिट्स होते हैं, तो हम हमेशा टेंस को 2 डिजिट्स में ही लिखेंगे. सो 5050 plus 9 because 9 is in the place of 1, so we wrote it like this. Now next is 72, ठीक है. So in 72 we will write 2 accordingly in ones and 7 accordingly, 70. So this is tens and ones. That is how you will write all and solve all the sums. Now next one question is write in the short form. ठीक है, अब जैसे हमने किसी चीज़ को expand किया था, we expanded in a long form. ठीक है, expand करना मतलब उसको हमने long form में किया. Then there is the question write in a short form. Short, SHORT, short form. Write in the short form. अब short का मतलब क्या होता है? So short means thing which is small, मतलब उसको छोटा हम कह सकते हैं. तो अब हम उसे छोटा कैसे करेंगे? Like there is given 20 plus 1. सो आपको दिख रहा है कि 20 plus 1, यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली वी कैन ऐड दीज 2 नंबर्स, है ना, हम इसको ऐड भी कर सकते हैं. इंस्टेड ऑफ एडिंग द नंबर आई एम सेइंग टू यू लाइक देयर इज रिटन 20 plus 1, तो आपको दिख रहा है दैट दीज आर द वंस. ये यहाँ का वंस हो गया और ये हो गया टेंस. ठीक है, ये वंस है, ये टेंस है, तो हम वंस और वंस को हमेशा ऐड करते हैं, है ना. मैंने आपको अच्छे से सिखाया है दैट वी ऑलवेज ऐड वंस इन अ वंस, टेंस इन अ टेंस, 100 इन 100. देन वी आर गोइंग टू ऐड वंस इन वंस, तो 1 plus 0 क्या हो जाएगा? 1 ही होगा. एंड टेंस बिकॉज देयर इज नो टेंस, सो वी विल राइट इट एज यूजुअल 2. तो ये आ गया मेरा 21. इफ द क्वेश्चन इज 70 plus 4, तो हम क्या करेंगे? वी विल सी एड द वंस इन वंस एंड टेंस इन टेंस. देयर इज नो टेंस इन 4, यहाँ पे कोई टेंस ही नहीं है. व्हेन वी आर एडिंग वंस इन अ वंस, सो 4 plus 0 विल बी 4 एंड 7 एज टेंस. अगर अब आपको ऐसे में नहीं आ रहा कि हम इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? शॉर्ट फॉर्म में लिखना. क्वेश्चन क्या था? शॉर्ट फॉर्म में लिखना. अब आपको अभी भी नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? आप सिंपल कीजिए 70 plus 4, आप उसको ऐड कर लीजिए. इफ़ यू आर अनेबल टू डू लाइक दिस, ठीक है, अगर आपको इसमें डिफ़िकल्टी फील हो रहा है कि हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे करें, देन व्हाट यू विल डू, यू सिंपली ऐड द नंबर्स. ऐसे आप लिख कर उसको ऐड कर दीजिए. सो 0 plus 4, अब तो आप पे बन ही जाएगा 4 एंड 7 बिकॉज देयर इज नो नंबर, तो 7, तो हमारा आंसर क्या गया? 74. अब जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया था 70 plus 4 एंड राइट इट इन अ शॉर्ट फॉर्म. अब आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ शॉर्ट फॉर्म में मतलब क्या करना, देन सिंपली आपको प्लस का साइन तो दिख ही रहा है, जस्ट ऐड देम एंड गॉट योर आंसर, राइट द 74. ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा आपको क्वेश्चन का हेडिंग क्या लिखा हुआ है, देन यू कैन सी द साइंस देयर ना. आपको वहाँ पे जो साइन लगा हुआ है, जो मार्क दिख रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लो. ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन डू. लाइक देयर इज रिटन 80 plus 9 एंड द क्वेश्चन इज राइट इन शॉर्ट फॉर्म. ठीक है, राइट इन शॉर्ट फॉर्म, राइट इन शॉर्ट फॉर्म. इसको क्या करना है? शॉर्ट फॉर्म में लिखना. दिस इज द क्वेश्चन रिटन एंड देयर इज द फर्स्ट सम 80 plus 9. एंड नाउ यू आर रीडिंग द हेडिंग बट यू आर स्टिल अनेबल टू गेट what you need to do. Write in short form, you are still unable to get that what you need to do. Then you see the sum. अब आपको sum तो अच्छे से दिख रहा है. Then what is in the sum? 80 plus 9. Just in the rough form you do 80 plus 9 plus का साइन लगाया, 0 plus 9 9 and 8 का 80 आ गया. तो मेरा आंसर तो मुझे मिल गया 89. Just write it there. हो गया सॉल्व. इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड इट, फॉलो द मार्क्स, मतलब जो वहाँ पे मार्क्स लगे हुए हैं, जो वहाँ पे साइन दिए गए हैं, उनको फॉलो करके आप किसी भी सम को सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, नाउ सॉल्व इन द बुक हियर. सो हियर इज रिटन 20 plus 5.
तो आपको यहाँ पे दिख रहा है वंस में क्या वंस में क्या है यहाँ पे 5, यहाँ पर वंस में है 0 और टेंस में है 2। तो मैंने वंस और वंस को ऐड किया, 5 + 0, तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो मेरा नंबर ही आंसर हो जाता है, तो 5 आ गया। एंड 2 बिकॉज देयर इज नो टेंस, सो आई रोट इट लाइक सेम। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व ऑल दीज सम्स, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ हियर द नेक्स्ट वन विच इज काउंटिंग बाय जंप्स। काउंट करना मीन्स काउंट ही करना होता है, जंप करना मीन्स जंप करना मतलब पासिंग द नंबर्स, ठीक है। जंप करना मीन्स पास द प्लेस और पास द नंबर्स। तो इस तरह से हम अब क्या करेंगे, काउंटिंग बाय जंप्स। अब हम जंप्स के थ्रू काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पर ये भी ना आए देन यू नीड टू लर्न द टेबल्स। एटलीस्ट यू शुड लर्न द टेबल टिल 10, ठीक है। टिल 10 टेबल आपको लर्न करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टेबल्स डालूंगी टिल 2 to 6 एंड देन 7 to 10, ठीक है। 2 to 6 और देन 7 to 10 मैं टेबल्स डालूंगी। आप सभी को टेबल्स लर्न करने हैं, क्योंकि जैसे ही आपका स्कूल स्टार्ट होगा, आप सभी स्कूल आओगे, फर्स्ट थिंग विच आई विल आस्क टू यू, मतलब जैसे ही स्कूल आके मैं फर्स्ट चीज़ आपसे क्या पूछने वाली हूँ, दैट विल बी टेबल्स। और जिस पे टेबल नहीं बना बहुत बुरी पिटाई हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है सबको टेबल लर्न होना चाहिए। चलो, तो फिर हम अभी क्या लर्न करने वाले हैं, दैट इज काउंटिंग बाय जंप्स। हम जंप्स के थ्रू काउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि व्हाट इज इट, ये है क्या। सो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब भी आपको इस तरह से एक लाइन उसमें नंबर दिखते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सीरीज, ओके। उसको ग्रिड लाइंस भी बोलते हैं, बाय लाइनिंग। तो हम इस तरह से इसको ऐड भी करते हैं, इस तरह से नेक्स्ट नंबर भी फॉर्म करते हैं, ओके। तो हम अभी ये देखते हैं कि इसमें कैसे करना है काउंटिंग बाय टूज। काउंटिंग बाय टूज हम इसको क्या पढ़ेंगे, टूज। अगर 3 के आगे आपको S लिखा दिखे, देयर इज रिटन 3 एंड देन S, 3s, 4 and S, 4s, 5 and S, 5s, 6s, 7s, 8s, 9s, 10s, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। सो टूज, कंसिडर द नंबर लाइन एंड जंप 2 paces every time, 2 places होना चाहिए, 2 paces every time. So there you can see 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये तो नंबर लाइन है। अब आपको 2 नंबर्स को जंप करना है, मतलब 2 नंबर्स को जंप करने का मतलब है कि बीच में आपको कुछ स्किप भी करना है। स्किप करना मीन्स कुछ बीच में छोड़ना भी होगा, तब तो हम जंप करते हैं। जब भी आप लैंड पर, जब भी आप ज़मीन पर आप जंप करते हो तो आप कुछ प्लेस को छोड़ कर जंप करते हैं ना। तो दैट इज़ हाउ वी आर ऑल्सो जंपिंग, वी आर स्किपिंग द प्लेस। सो लेट्स सी हियर। हमने सबसे पहले 0 से स्टार्ट किया। वी स्किप द नंबर 1 एंड जम्प्ड ऑन 2। अब मैंने फिर से 2 नंबर जंप करना, मतलब मैंने यहाँ पर 3 को स्किप किया एंड वी जम्प्ड ऑन 4। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 2 नंबर जंप करना, तो एक नंबर आपका ये प्लेस भी कहलाता है, ठीक है। 2 and 3 इन 2 नंबर्स को जंप करके आप 4 पर पहुँचे हो। 4 and 5 को जंप करके आप 6 पर पहुँचे हो। 6 और 7 को जंप करके आप 8 पर पहुँचे हो। दिस इज वाई वी आर सेइंग जंप बाय टूज, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देयर इज रिटन 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो अब आपको दिख रहा है, बिकॉज सम ऑफ यू हैव लर्नड द टेबल, तो आपको पता है कि ये टेबल लिखा हुआ है टूज का। बट ये टेबल जो है ये फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। लेट्स सी दिस। तो आप यहाँ पर देखोगे, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं। यू सी 0 + 2। अगर मैंने किसी नंबर में ओनली 2 ऐड किया तो आंसर तो ऑब्वियसली 0 अगर ऐड किया है तो 2 ही आएगा, ठीक है। अब मैंने इस आंसर 2 में फिर से 2 ऐड कर दिया, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। नाउ द आंसर केम 4 में फिर से मैंने 2 ऐड कर दिया, देन 4 + 2 6। इन दिस आंसर 6 आई एडेड अगेन 2, देन 8।
तो हम ये क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर में जो भी नंबर आया मैंने उसमें आगे 2 ऐड किया है। मैंने क्या किया, आगे 2 ऐड किया। या फिर मैं बोल सकती हूँ मैंने 2 नंबर जंप किया। अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करूँ और उसमें मैं इस तरह से 1 2 3 इस तरह से अगर मैं उसमें लिखूँ, इन दिस नंबर लाइन ऑल्सो इफ़ आई एम जंपिंग 2 नंबर्स, तो भी मुझे क्या नंबर्स मिल रहे हैं, 2 4 6 8। अगर मैं 2 नंबर्स जंप करती हूँ तब भी मुझे वही मिलता है, और अगर मैंने उसमें ऐड भी किया तब भी मुझे सेम नंबर्स ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसी को हम बोलेंगे काउंटिंग बाय टूज, मतलब काउंटिंग 2 नंबर्स को ऐड करना या 2 नंबर्स को जंप करके। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने नेक्स्ट नंबर पर पहुंचते हैं। ठीक है, इस तरह से हम अपने नेक्स्ट नंबर पर पहुंचते हैं। सो दैट इज कॉल्ड काउंटिंग बाय जंपिंग। ठीक है, काउंटिंग बाय जंपिंग। वी कैन से काउंटिंग बाय एडिंग द सेम डिजिट नंबर ऑल्सो, मतलब अगर मैं उसमें सेम डिजिट नंबर को ही बार बार ऐड करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट नंबर उसके आगे मिलता जाता है। सो आप नंबर लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, एंड ऑल्सो यू कैन यू कैन गेट द आंसर बाय एडिंग द सेम नंबर। ठीक है, और इस तरह से हमें टेबल भी फॉर्म हो गया अभी यहाँ पर, जैसे यू कैन सी दिस 2 4 6 8, तो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 4 ज़ा 8। तो ये भी कैसे बना है, बाय एडिंग देम बाय जंपिंग द 2 नंबर्स। ठीक है, ये टेबल्स भी कैसे फॉर्म होते हैं, बाय जंपिंग और बाय एडिंग द सेम नंबर और सेम डिजिट अगेन एंड अगेन। सो दैट इज हाउ वी आर गेटिंग आर टेबल्स। हमें इस तरह से अपने टेबल्स मिले हैं, और इसी तरह से हम इसे क्या बोलते हैं, काउंटिंग बाय जंपिंग। नाउ आपको यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, काउंटिंग बाय टूज कंप्लीट द सीरीज। काउंटिंग बाय टूज कंप्लीट द सीरीज, लाइक 2 देन 4 देन 6, उसके बाद के सारे आपके बुक में ब्लैंक है। तो आपको पहले पता लगाना होगा कि इस 2 के बाद इसने 4 कैसे दिया, 4 के बाद इसने 6 कैसे दिया। अब हमें ये कैसे पता चलेगा, सो आप देखिए डिफरेंस कितना है। अगर क्वेश्चन पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या देखना है, हमेशा इन 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखिए आप। ठीक है, सॉल्व करने का मैं बता रही हूँ कि आपको सॉल्व कैसे करना है। इफ़ यू आर गेटिंग क्वेश्चंस लाइक दैट देन यू नीड टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स, मतलब आपको नंबर्स के बीच का डिफरेंस देखना है। जैसे यहाँ 2 के बाद मैंने 3 को स्किप करके 4 पे आ गई। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है ना 2 4 6, तो 2 के बाद यहाँ बीच में क्या था, 3 को मैंने स्किप कर दिया ना, देन 4, और यहाँ बीच में क्या था 5, मैंने 5 को स्किप कर दिया और मैं 6 पे गई। अब आगे अगर ये इतना नंबर ऐसे दिया है तो इसके आगे भी सेम ही हम फॉलो करेंगे। मतलब क्या, 6 के बाद आता है 7, मैंने उसको स्किप कर दिया और नेक्स्ट आने वाला नंबर मैंने लिखा 8। अब 8 के बाद आने वाला नंबर क्या है, दैट इज़ 9। आई एम गोना स्किप दिस नंबर एंड गोना राइट 10। So what I am doing, I am skipping one thing and counting it by 2s. So you can learn the table also. आप simple आप तो table के थ्रू कर सकते हैं, but if you are getting a digit differently, जैसे मैंने आपको दिया है 3 5 7 और मैंने आपको यहाँ पे ब्लैंक बना के दिया है कि अब इसको आप कंप्लीट करो। मेरा क्वेश्चन तो ये है। अब आप कहोगे कि ये तो टेबल ही नहीं है, 3 5 7 ऐसा तो कोई टेबल नहीं है, तब आप क्या करोगे इन दैट कंडीशन, मतलब इस कंडीशन में आपको क्या देखना है, यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स। आपको इन डिजिट्स के बीच का डिफरेंस देखना है। जैसे मैंने क्या किया है, 3 और यहाँ पे कुछ नंबर होगा और उसके बाद 5 आया है, क्योंकि 3 के बाद तो 5 नहीं आता। सो देयर इज़ द नंबर 4 विच आई स्किप्ड। स्किप का मतलब क्या होता है, उसको छोड़ देना। ठीक है, तो मैंने 4 छोड़ा और 5 यहाँ पे लिखा हुआ था। देन 5 आफ्टर 5 देयर मस्ट इज़ रिटन 6, मस्ट बी देयर इज़ नंबर 6 विच आई स्किप्ड, मतलब मैंने उसको स्किप कर दिया। तो सिमिलरली आप उसे आगे बढ़ाओगे। जैसे 7 के बाद आता है 8, मैंने उसको किया स्किप एंड आई रोट द नंबर 9 हियर। देन आफ्टर 9 विच नंबर कम्स, दैट इज 10। 10 को मैंने किया स्किप और उसके बाद वाला नंबर मैंने 11 लिखा। सो व्हाट आई डिड, आई स्किप्ड द नंबर एंड रोट इट इन दिस वे।
सो हियर यू कैन सी एंड यू लर्नड हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। आपको सॉल्व कैसे करना है अगर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, यू नीड टू लर्न दैट, सो दैट इज़ हाउ यू कैन राइट इट। अब आप यहाँ पर देखोगे दैट आई स्किप्ड आफ्टर 6, विच नंबर कम्स, 6 के बाद आता है 7, 7 को स्किप करा 8 लिखा, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 को स्किप किया एंड आई रोट 10, 10 के बाद आता है 11, 11 को स्किप किया आई रोट 12। तो इस तरह से स्किप करना मतलब किसी नंबर को छोड़ना, इस तरह से वी कैन राइट। अदरवाइज यू कैन सी दैट दिस इज रिटन एज टेबल फॉर्म, 2 to the 4 to the 6 to the 8 to the 10 to the 12 to the 14, इस तरह से इट इज़ रिटन एज टेबल, है ना, ये टेबल के फॉर्म में लिखा है। सो यू कैन राइट इट सिंपली एज टेबल, बट इफ़ यू आर गेटिंग द नंबर्स विच आर नॉट अरेंज्ड एज टेबल, मतलब कुछ नंबर्स आपको दिए गए जो टेबल के फॉर्म में ही अरेंज नहीं है, देन व्हाट यू विल डू, यू विल फॉलो द मेथड ऑफ स्किपिंग, उस नंबर को स्किप कीजिए। हम जहाँ मैं वर्ड बोलती हूँ स्किप करना, वहाँ आप वर्ड कह सकते हो जंप करना, एक नंबर को जंप करना, जंप करने का मतलब उतने प्लेस को लीव करना होता है, छोड़ना ही होता है। सो दैट इज़ वाई आई यूज्ड द वर्ड स्किप एंड यू कैन से जंप करना, उस नंबर को, एक नंबर को जंप करके आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। दिस इज वी डिड एंड हियर आई एम फिनिशिंग दिस टुडेज वीडियो ऑल्सो, आई गॉट लिटिल वर्क, so I'm finishing it here and later we will move on and complete this chapter. So here I'm finishing it. Bye bye, take care of yourself.